کہانی کے آغاز میں ایک شخص جس کا نام ڈیو ہے اچانک افغانستان میں موجود ایک امریکی سفیر مائک کی کال وصول کرتا ہے۔ مائک اسے بتاتا ہے کہ ان کے بیس پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا ہے اور ان کے بہت سے آدمی وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ یہ بھی وضاحت کرتا ہے کہ وہ جاسوس خاندان جسے ڈیو نے بھیجا تھا یعنی والٹر فیملی، اس پر بھی حملہ ہو چکا ہے۔ مائک اصرار کرتا ہے کہ والٹر فیملی کو ہر قیمت پر بچانا ضروری ہے۔ فوج میں تقریباً ہر کوئی والٹر فیملی کے بارے میں جانتا تھا کیونکہ والٹر کئی سالوں تک پاکستان اور افغانستان میں ایک جاسوس کے طور پر خدمات انجام دے چکا تھا۔ اس نے بے شمار خفیہ دہشت گرد سرگرمیوں کی رپورٹ دی تھی اور بر وقت امریکی حکام کو نہایت اہم انٹیلیجنس فراہم کی تھی۔ انہیں بچانے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ والٹر کے خاندان میں ایک 13 سالہ بیٹا اور ایک 5 سالہ بیٹی شامل تھی۔ والٹر نے امریکہ کے لیے بہت کچھ کیا تھا اور وہ اتنے معصوم خاندان کو اس طرح مرنے نہیں دے سکتے تھے۔ اسی دوران والٹر شدید زخمی حالت میں اپنی فیملی کے ساتھ جنگل کے راستے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور بے حد بے بسی کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ڈیو ابتدا میں اس مشن کو قبول کرنے میں ہچکچاتا ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا بین الاقوامی تنازع کھڑا کر سکتا ہے۔ تاہم مائک اسے قائل کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اگر اس کے اپنے خاندان کے ساتھ ایسا ہو تو وہ کیسا محسوس کرے گا۔ مائک کا بیس بھی طالبان کے شدید حملے کی زد میں ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے والٹر فیملی کو بچانے کے لیے مدد کی کال کرتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا رابطہ منقطع ہو جائے۔ اس کے بعد مائک جلدی اپنا سامان پیک کرتا ہے اور بیس چھوڑ دیتا ہے۔ ڈیو فوراً ایک سینئر ایجنٹ جو ان سے رابطہ کرتا ہے اسے پوری صورتحال سمجھاتا ہے اور والٹر فیملی کے لیے ریسکیو آپریشن کرنے کو کہتا ہے۔ جون وقت ضائع کیے بغیر اپنی بہترین یونٹ وار ہارس ٹیم کو اس مشن پر بھیج دیتا ہے۔ جلد ہی وار ہارس ٹیم مکمل ہتھیاروں اور ساز و سامان کے ساتھ افغانستان کے جنگلات کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ ان کے پاس واحد سراغ یہ ہوتا ہے کہ والٹر فیملی کو آخری بار ایک سبز رنگ کی گاڑی میں پاکستان کی سرحد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ جیسے ہی وار ہارس ٹیم کا ہیلی کاپٹر جنگل کے قریب پہنچتا ہے، ایک قریبی پہاڑی پر چھپا ہوا دہشت گرد اچانک بازوکا میزائل سے حملہ کر دیتا ہے۔ میزائل ہیلی کاپٹر کو نشانہ بناتا ہے جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر بے قابو ہو کر زمین کی طرف گھومتا ہوا نیچے آ گرتا ہے۔ حادثہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ ایک سپاہی مارکو کے سوا کوئی بھی زندہ نہیں بچتا جو عین وقت پر ہیلی کاپٹر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہیلی کاپٹر زمین سے ٹکراتے ہی زوردار دھماکے سے پھٹ جاتا ہے اور مارکو کے تمام ساتھی موقع پر ہی مارے جاتے ہیں۔ مارکو جو وار ہارس ٹیم کا لیڈر تھا اپنے کال سائن وار ہارس 1 کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اچانک حملے کے بعد مارکو بدحواس ہو جاتا ہے اور اس کا ذہن بالکل سن ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آتا ہے اور لڑکھڑاتے ہوئے ملبے کی طرف جاتا ہے اس امید میں کہ شاید کوئی زندہ ہو۔ وہ کافی دیر تک ملبے میں تلاش کرتا رہتا ہے اور کسی جواب کا انتظار کرتا ہے، مگر افسوس کہ کوئی آواز نہیں آتی۔ یہ نقصان مارکو کو اندر سے توڑ دیتا ہے کیونکہ فوج میں ساتھی ہی آپ کا خاندان بن جاتے ہیں۔ مجبوری کے تحت وہ اپنا خراب کمیونیکیشن ڈیوائس درست کرتا ہے اور ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جان کو پیغام موصول ہوتا ہے اور وہ حملے اور وار ہارس ٹیم کی مکمل تباہی کے بارے میں جان لیتا ہے، سوائے مارکو کے۔ مارکو پھر بھی درخواست کرتا ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہیلی کاپٹر کے ملبے کی جانچ کی جائے تاکہ کسی اور زندہ فرد کا پتہ چل سکے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کی ٹیم کا کوئی اور رکن زندہ نہیں بچا ہوتا۔ یہ خبر مارکو کو شدید غصے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی دوران مارکو ایک چٹان کے قریب سے گزرتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو دیکھتا ہے جن میں سے ایک نے ان کے ہیلی کاپٹر پر بازوکا فائر کیا تھا۔ انہیں دیکھ کر مارکو بے قابو غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ فوراً پوزیشن لیتا ہے اور آسانی سے 2 دہشت گردوں کو مار دیتا ہے، مگر تیسرا دہشت گرد کسی طرح فرار ہو جاتا ہے اور اپنے باقی ساتھیوں کو بلا لیتا ہے۔ مارکو کے ساتھی کاسل سیٹلائٹ کے ذریعے اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے محتاط رہنے کی وارننگ دیتا ہے۔ کاسل اسے بتاتا ہے کہ 30 سے 40 دہشت گرد اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اسے چھپنے کا مشورہ دیتا ہے جب تک کمک نہ پہنچ جائے، لیکن شدید غصے میں مارکو احکامات ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی وقت مارکو کا کمانڈر جان اس سے بات کرتا ہے۔ وہ مارکو جیسے بہادر سپاہی کو کھونا نہیں چاہتا اور اس کی ٹیم کی ہلاکت پر بے حد افسردہ ہوتا ہے۔
मार्को ये बात समझ जाता है और हमला ना करने का फैसला करता है, मगर तब तक दहशतगर्द उसे देख चुके होते हैं। वो मार्को पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसके जवाब में मार्को भी फायर करता है। वो कई दहशतगर्दों को मार देता है और वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। वो एक चट्टान के करीब छुप जाता है और मौका मिलने पर दहशतगर्दों पर फायर करता रहता है। कई और दहशतगर्द मारे जाते हैं, मगर मार्को के पास गोलियां बहुत कम रह जाती हैं। इस हालत में सबको मारना नामुमकिन होता है। अपनी जान बचाने के लिए मार्को चट्टान से नीचे बहते हुए दरिया में छलांग लगा देता है और पानी के साथ बहने लगता है। दहशतगर्द ये समझ लेते हैं कि कोई भी इस छलांग के बाद जिंदा नहीं बच सकता, इसलिए वो ये मान लेते हैं कि मार्को मर चुका है और वहाँ से चले जाते हैं। बदले की आग में जलता हुआ मार्को जिंदा बच जाता है और कुछ ही देर बाद दरिया के किनारे जंगल के करीब निकल आता है। वो एहतियात से आगे बढ़ना शुरू करता है। रास्ते में इसे एक गाड़ी नजर आती है जिसके पास कई लाशें पड़ी होती हैं। गाड़ी के अंदर वॉल्टर की फैमिली मौजूद होती है। दहशतगर्द वॉल्टर के पूरे खानदान को मार चुके होते हैं, सिवाय वॉल्टर और उसकी 6 साला बेटी जॉय के। वॉल्टर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है और वो मरने के करीब होता है। मरने से पहले वॉल्टर मार्को से दरखास्त करता है कि वो उसकी बेटी जॉय को बचा ले। मार्को वॉल्टर को भी बचाना चाहता है, मगर ये जानते हुए कि वो अब नहीं बच सकता, वो जॉय को अपने साथ ले लेता है और जंगल में महफूज जगह तलाश करने लगता है। जॉय इतनी मासूम होती है कि वो समझती है कि उसके वालिदैन अभी गहरी नींद सो रहे हैं। मार्को खौफज़दा होने के बावजूद उसे हकीकत नहीं बताता और फैसला करता है कि वो उसे सीधा इवैक्यूएशन पॉइंट तक ले जाएगा। उसी दौरान तमाम दहशतगर्द वॉल्टर की गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं ताकि इस बात की तस्दीक कर सकें कि वाकई वॉल्टर और उसका पूरा खानदान मारा जा चुका है। इस वक्त उनके साथ उनका लीडर रातूम भी मौजूद होता है। रातूम वॉल्टर को मुर्दा देखकर बेहद खुश होता है, लेकिन उसी लम्हे उसका एक साथी उसे इतला देता है कि जॉय गायब है और करीब ही मार्को के जूतों के निशान मिले हैं। ये बात रातूम और बाकी दहशतगर्दों को इस नतीजे पर पहुंचाती है कि मार्को अभी जिंदा है और जॉय उसके साथ है। रातूम फौरन सबको हुक्म देता है कि जॉय और मार्को को जितनी जल्दी मुमकिन हो ढूंढा जाए। ताहम उसकी टीम का एक रुकन वॉल्टर फैमिली की लाशों की तस्वीरें भी बना रहा होता है। इधर जैसे जैसे मार्को और जॉय आगे बढ़ते हैं, जॉय आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिद की मौत की हकीकत को समझने लगती है। वो मार्को को बताती है कि जिन लोगों ने उसके ख़ानदान को मारा है वो बहुत बुरे लोग हैं। उसके वालिद ने उसे बचपन से सिखाया था कि जो लोग मासूमों को तंग करते हैं वो मुजरिम होते हैं। जॉय मार्को को नसीहत करती है कि वो भी बुरे लोगों जैसा रवैया ना करे और उन्हें मारने के बजाय सिर्फ पकड़ ले। जॉय के इतने मासूम अल्फाज सुनकर मार्को हैरान रह जाता है। वो जॉय को समझाता है कि वो लोग वाकई बहुत ख़तरनाक है और उसे जॉय की जान बचाने के लिए शायद उन्हें मारना पड़े। जॉय ये बात मान लेती है। आगे बढ़ते हुए मार्को को कई बारूदी सुरंगें नजर आती हैं। वो आसानी से उन्हें नाकारा बना देता है और जॉय के साथ आगे बढ़ता रहता है। वो जॉय को खबरदार भी करता है कि मुहतात रहे, क्योंकि रातूम ने अपने आदमी उनके पीछे छोड़ दिए हैं। अचानक मार्को एक करीबी चट्टान पर खड़े रातूम के 2 आदमियों को देखता है जो उन्हें तलाश कर रहे होते हैं। मार्को जॉय को नीचे रहने को कहता है, खामोशी से आगे बढ़ता है और दोनों दहशतगर्दों को आसानी से मार देता है। इसी दौरान रातूम पहले ही जंगल के हर रास्ते पर अपने आदमी भेज चुका होता है ताकि मार्को और जॉय को हर कीमत पर पकड़ा जा सके। इसके बावजूद मार्को और जॉय इंतहाई एहतियात के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। फिर दूरबीन से देखते हुए जॉय उन दहशतगर्दों में से एक को पहचान लेती है जिसने उसके वालिदैन और भाई को मारा था। जॉय को तकलीफ में देखकर मार्को उसे संभालता है और आगे बढ़ता रहता है। मार्को चट्टान के कदरे ऊपर चढ़ चुका होता है, इसलिए वो वापस आकर कासिल और हेडक्वार्टर से राब्ता करता है और जल्द अज जल्द मदद की दरख्वास्त करता है। दुश्मन तकरीबन उन्हें घेर चुका होता है, लेकिन कासिल उसे बताता है कि वो उस मकाम पर मदद नहीं भेज सकते। कासिल वजाहत करता है कि मार्को को अभी चंद किलोमीटर मजीद सफ़र करना होगा, तब जाकर वो और उसकी बाकी टीम उसकी मदद कर सकेंगे। मार्को के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो रजामंद हो जाता है। रात हो जाती है और जॉय बहुत ज़्यादा थक जाती है, इसलिए मार्को एक कार में रुकने का फैसला करता है। गार के अंदर जाने के बाद वो बाहर कुछ बारूदी सुरंगें नस्ब कर देता है ताकि अगर रातोम और उसके आदमी अंदर आने की कोशिश करें तो या तो धमाके में मारे जाएं या कम से कम मार्को को बरवक्त खबरदार कर दे।
सोने से पहले जॉय मार्को से बहुत से सवाल पूछती है। वो जानना चाहती है कि वो वहाँ क्यों आया था। मार्को उसे बताता है कि उसे और उसकी टीम को वॉल्टर और उसके खानदान को बचाने का मिशन दिया गया था। वो हेलीकॉप्टर में आराम से उनके करीब पहुंच रहे थे, लेकिन अचानक एक साइड वाइंडर मिसाइल ने उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया और वो गिरकर तबाह हो गया। मार्को बताता है कि उसकी जान सिर्फ इसीलिए बची क्योंकि वो वक्त पर हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने में कामयाब हो गया था। ये सुनकर जॉय मार्को को एक गिरा हुआ फरिश्ता कहती है जो उसकी मदद के लिए आया था, मगर मार्को कहता है कि वो कोई फरिश्ता नहीं है। फिर जॉय मार्को से एक सुपर हीरो की कहानी सुनाने को कहती है। मार्को उसे अपने दोस्त अजीज की कहानी सुनाता है, जो एक मुसलमान सिपाही था और सबसे बहादुर आदमी था जिसे मार्को ने कभी देखा था। अजीज ने एक बार ट्रक में बैठे बैठे दुश्मनों से लड़ाई की और मार्को की जान बचाने के लिए पूरा शहर उड़ा दिया था, मगर अजीज खुद इस जंग में जिंदा नहीं बचा था। मार्को के लिए अजीज ही उसका असल सुपर हीरो था और वो उसका हमेशा शुक्रगुजार रहा। अगली सुबह जैसे ही मार्को और जॉय गार से निकलते हैं, एक दहशतगर्द वहां आ जाता है। मार्को उसे देखते ही उसके चेहरे पर छुरी फेंकता है और फिर उसे बार बार वार करके मार देता है। जॉय थोड़ी डर जाती है और उसे अपने खानदान की मौत के मनाजिर याद आने लगते हैं, मगर मार्को उसे तसल्ली देता है और दूसरे दहशतगर्दों के पहुंचने से पहले वहां से ले जाता है। वो जॉय को एक करीबी चट्टान की तरफ ले जाता है। थोड़ी देर बाद मज़ीद दहशतगर्द गार के पास पहुंच जाते हैं। वो अपने साथी की लाश देखकर खौफजदा हो जाते हैं। उनमें से एक बारूदी सुरंग पर पांव रख देता है और फौरन मारा जाता है। इसी दौरान जब मार्को दरिया के करीब हाथ धो रहा होता है, वो जॉय को छुरी फेंकने की कोशिश करते देखता है। पहले तो मार्को उसे रोक देता है, लेकिन जॉय के अज़्म को देखकर वो उसे छुरी फेंकना सिखाने लगता है। जॉय जल्द ही नकली छुरी से निशाना लगाना सीख लेती है। फिर मार्को उसे असली छुरी देता है और फेंकने को कहता है। जॉय बिल्कुल दुरुस्त निशाना लगाती है। मार्को जॉय के साथ आगे बढ़ता रहता है, जबकि रातों के आदमी अब भी पूरे जंगल में उन्हें तलाश कर रहे होते हैं। जॉय के पास एक कुत्ता होता है जिसका नाम लुई था, जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसकी माँ ने वादा किया था कि अमेरिका वापस जाकर उसे एक असली कुत्ता लेकर देगी। जॉय अपनी माँ को बहुत याद करती है और उसकी मौत पर बहुत गमगीन होती है। मार्को उसे समझाता है कि एक दिन सबको मरना होता है। जॉय खुद को संभाल लेती है और मार्को से वादा करती है कि वो उसे इस जगह से जिंदा निकालेगा। इसी दौरान रातू उसके साथी मार्को के बहुत करीब पहुंच चुके होते हैं। कुछ ही देर बाद मार्को दूरबीन के जरिए दहशतगर्दों को देख रहा होता है कि अचानक जॉय से हल्की सी आवाज निकल जाती है। इसी लम्हे एक शख्स बंदूक हाथ में लिए उनके सामने आ खड़ा होता है। ये रातूम होता है, मगर मार्को और जॉय को ये मालूम नहीं होता कि वही दहशतगर्दों का लीडर है। मार्को फौरन रातूम को बंदूक के निशाने पर ले लेता है। रातूम खुद को एक आम शहरी जाहिर करता है और झूठ बोलता है कि उसके पास बंदूक सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस इलाके में बहुत से दहशतगर्द मौजूद हैं। अगरचे मार्को इस पर भरोसा नहीं करना चाहता था, मगर आखिरकार वो उसकी बातों में आ जाता है। उन्हें फंसाने के लिए रातों मशवरा देता है कि वो उन्हें अपने घर ले चले ताकि मार्को और जॉय कुछ खा पी सके। शुरू में मार्को इनकार कर देता है, लेकिन चूंकि जॉय ने पिछले दिन से कुछ नहीं खाया होता, इसलिए मार्को उसके साथ जाने पर रजामंद हो जाता है। इसी दौरान कासल मार्को से राब्ता करता है और उसे उस जगह के बारे में बताता है जहां इवैक्यूएशन टीम पहुंचने वाली होती है। कासल मार्को को वक्त पर पहुंचने की हिदायत देता है, जिस पर मार्को रजामंदी जाहिर करता है। चूंकि इवैक्यूएशन टीम के पहुंचने में अभी कुछ वक्त होता है, इसलिए मार्को फैसला करता है कि वो पहले जॉय को लेकर रातोम के घर जाएगा। से ही एक दहशतगर्द उस पर हमला करने की कोशिश करता है। मार्को फौरन पोजीशन ले लेता है और एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देता है। ये सब रातोम देख रहा होता है, जो इसी दौरान जॉय को अगवा कर चुका होता है। जब मार्को को ये मालूम होता है कि रातूम ही दहशतगर्दों का असल लीडर है, तो वो शदीद गुस्से में आ जाता है। ताहम चूंकि रातूम ने उसे बताया था कि उसका घर करीब ही है, इसलिए मार्को गांव की तलाश शुरू कर देता है। वो जल्द ही रातूम के गांव तक पहुंच जाता है और उसके दाखिले रास्ते पर मौजूद मुहाफिज को मार देता है। वो उसके कपड़े पहन लेता है और गांव के अंदर दाखिल हो जाता है। मार्को एक दहशतगर्द को बंदूक के जोर पर पकड़ता है और जॉय के बारे में पूछता है।
वो शख्स मजबूरी में मार्को को रातूम के अड्डे तक ले जाने पर आमादा हो जाता है। रास्ते में रातूम के कई साथी मार्को पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर चूंकि मार्को स्पेशल फोर्सेस का रुकन होता है, उसकी तरबियत आम लोगों से कहीं ज़्यादा होती है। वो आसानी से कई दहशतगर्दों को मार देता है, मगर इसके बावजूद सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक बनी रहती है। जैसे ही मार्को मरकज़ी अड्डे के करीब पहुंचता है, उसकी मुठभेड़ तारा से हो जाती है, जो रातूम का सबसे ख़तरनाक आदमी होता है। मार्को थका हुआ होता है, इसलिए तारा को बढ़तरी हासिल होती है और वो मार्को को बुरी तरह ज़ख्मी कर देता है। वो मार्को को मारने ही वाला होता है कि अचानक रातूम आ जाता है और उसे रोक देता है। रातूम मार्को को एक कमरे में ले जाता है और बेरहमी से उस पर तशद्दुद शुरू कर देता है, ताकि ये मालूम कर सके कि मार्को के बाकी साथी कहाँ आने वाले हैं, मगर मार्को कुछ भी नहीं बताता। रातूम को अमरीकियों से शदीद नफ़रत होती है, क्योंकि अमरीकी फ़ौज ने एक बार उसके गांव पर हमला किया था और बहुत से दहशतगर्दों को मार दिया था, जिनमें रातूम के वालिदैन भी शामिल थे। वो गुस्से में आकर मार्को पर मज़ीद तशद्दुद करता है। मार्को उसे धमकी देता है कि वो अफ़गानिस्तान से ज़िंदा वापस नहीं जा सकेगा। साथ वाले कमरे में रातूम ने जॉय को एक पिंजरे में बंद कर रखा होता है और ख़ुद उस पर नज़र रखे हुए होता है। वो जॉय को गलत नज़रों से देखता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे जॉय ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जॉय की आवाज़ दूसरे कमरे में मौजूद मुहाफ़िज़ की तवज्जो हटा देती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मार्को एक आदमी से बंदूक छीन लेता है और फ़ौरन कमरे से बाहर निकल जाता है। वो रास्ते में आने वाले तमाम दहशतगर्दों को मार देता है और बड़ी मिक़दार में गोलियां अपने पास रख लेता है, क्योंकि वो जानता होता है कि दुश्मन के इलाके में किसी भी वक्त हमला हो सकता है। वो लड़ता हुआ जॉय के कमरे तक पहुंच जाता है। जॉय मार्को को देखकर बहुत खुश हो जाती है और सिर्फ एक लफ्ज़ कहती है, पापा। ये लफ्ज़ सुनकर मार्को के दिल में कई जज्बात एक साथ उभर आते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता जॉय की तरफ बढ़ता है। अचानक रातूम पीछे से आकर मार्को को पांव से दबा लेता है। जख्मी होने के बावजूद मार्को अपनी पिस्तौल निकालता है और रातूम को गर्दन में गोली मार देता है, जिससे वो फौरन मर जाता है। बाकी दहशतगर्द ये देखकर मजीद मुश्तइल हो जाते हैं। मार्को जॉय को लेकर भागने की कोशिश करता है, मगर दहशतगर्द बार बार उस पर हमला करते हैं। ताहम मार्को अपने पीछे लाशों का ढेर छोड़ चुका होता है। अपने तजुर्बे की वजह से वो जानता होता है कि ऐसी सूरत हाल में जिंदा रहने का वाहिद तरीका लड़ना है। किसी न किसी तरह वो जॉय के साथ गांव से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, मगर वहां पहुंचकर उसकी तमाम गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। मार्को के पास भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता। वो जॉय को अपनी बाहों में उठा लेता है और ज़ख्मी हालत में चट्टान की तरफ दौड़ने लगता है, क्योंकि इवैक्यूएशन टीम किसी भी वक्त पहुंच सकती होती है। जॉय मार्को की जान बचाने के लिए उसे बार बार हौसला देती है। मार्को भी पूरी कोशिश करता है कि वो ऊपर तक पहुंच सके, मगर एक मकाम पर आकर उसकी ताकत जवाब दे जाती है और वो गिर पड़ता है। थकी हुई मगर समझदार जॉय मार्को की हालत देखकर उसके पास से एक छुरी उठा लेती है और आते हुए दहशतगर्दों की तरफ निशाना बनाकर बैठ जाती है। दहशतगर्द आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आ रहे होते हैं। उनका कमांडर ये देखकर जीत को यकीनी समझने लगता है और जॉय को मारने ही वाला होता है। लेकिन जॉय की जान बचाने के लिए और उस वादे को पूरा करने के लिए कि वो उसे जंगल में मरने नहीं देगा, मार्को आखिरी ताकत जमा करता है। कमांडर के फायर करने से पहले ही एक गोली आकर उसकी आंख में लगती है और वो मौके पर ही मर जाता है। ये गोली इवैक्यूएशन टीम ने चलाई होती है, जो ऐन वक्त पर पहुंच जाती है। वो एक एक करके तमाम दहशतगर्दों को मार देते हैं और मार्को और जॉय को बचा लेते हैं। मार्को और जॉय को बेहिफाजत शहर मुंतकिल कर दिया जाता है। कहानी चंद महीने आगे बढ़ती है। मार्को अपनी नौकरी छोड़ देता है, क्योंकि वो जॉय के साथ एक आम जिंदगी गुजारना चाहता था। वो जॉय को गोद ले लेता है ताकि उसे खानदान का प्यार दे सके। अगरचे वो जानता था कि वो उसे उसके असल खानदान जैसा माहौल नहीं दे सकता, मगर वो जॉय के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। वो जॉय के लिए एक कुत्ता भी ले आता है, जिसका नाम वो लुई रखती है। जॉय खुशी खुशी उसके साथ खेलती है।